Hello, my dear students. How are you? Hope you all are fit and fine. So, my dear students, first of all, a hearty congratulations to all of you that you have scored very good marks in your last year, that is the session 2020-21. And I welcome you in your new session, that is the session 2021-22. So, my dear student, this is Sudarshan Singh over here, will teach you history. And first of all, I want to tell you about the syllabus of history. This time in your first unit test, you are having chapter number 1, the medieval Europe, rise and spread of Christianity. Chapter number 2, rise and spread of Islam. And chapter number 1 of civics, the constitution of India. So without wasting our time, let us begin. So my dear students, first of all, history is being divided into three parts. First one is ancient history. Second one is medieval history. And third one is modern history. Is it clear? In your 6th class, you have done your ancient history. आपने ancient history कर ली है, ठीक है? Over here in your 7th standard, we'll do your medieval history, and in your 8th standard, you will do your modern history. Now, beta, how are historians come to know that now the ancient period has been finished? Now the medieval period will start. Now the modern period will start, beta. So there are some, you can say, steps are over there. For example, when there are changes in our society, when there is change in our political scenario, when economic changes are over there, when religious changes are over there, when our customs, our culture, our festivals, our dress up sense, our language changes, we can say that now one epoch have been finished and the next period will start. Is it clear? Now during this period, especially the time of CE 700, over here the changes are over there. How? The invaders from Central Asia, the Islamic people, will come to India, and what they will do, there will be battles. For example, you have seen last year, the last chapter of our history, the Gupta Empire, the Golden Age. What happened? The invaders from Central Asia, the Hans people, were over there. They have attacked Gupta Empire again and again, and because of their repeated attacks, Gupta Empire was crumbled. So after them, a person came, Bakhtiyar bin Khalji, who has demolished the Nalanda University. जिन्होंने Nalanda University को तहस-महस कर दिया था. After them, beta, again the Turks will come from Central Asia. Central Asia से Turks आएंगे. Then Afghans will be there. Muhammad Ghazni will be there. ठीक है. Muhammad Ghori will be there. Sorry, Mahmud Ghazni will be there and Muhammad Ghori will be there. ठीक है. And because of them, the changes will come in our country. हमारी country में changes आएंगे. Political scenario में change होगा, society में change होगा, language will be now Urdu. In Gupta Empire, you have seen the Sanskrit language was over there. ठीक है? So these changes will be there. Because of these changes only, the historians have considered that in 700 CE, what will be there? There will be change from ancient history to medieval history in our India. So let us begin our part. First of all, so the term medieval is associated with the Middle Ages. The Middle Age is the period between the ancient and the modern history. You can see the medieval age is between the ancient history and the modern history. Okay. In Asia and Europe, the medieval age extends between CE 600 to 1500. But in our India, the medieval age will start from 700 to 1750. And this medieval age is also being divided into early medieval period and late medieval period. Early medieval period time period is from CE 700 to CE 1200, and late medieval period time will be 1200 to CE 1750. Yes, now come over here. By CE 500, what will happen in CE 500? What kinds of changes will be there, which will bring a transition period over in Europe in 600 CE. What changes were over there? Earlier, at that time, Europe was being ruled by Roman Empire. So by 500 CE, what happened? The Roman Empire in the West was destroyed by the result of invasions of barbaric tribes. These barbaric tribes were German tribes,
बहुत ही क्रूवल हैं, बारबेरिक ट्राइब्स हैं, लाइक हंस वर देयर जिन्होंने गुप्ता एम्पायर खत्म किया, ठीक है। यहाँ पर रोमन एम्पायर को खत्म करने वाले कौन कौन से ट्राइब्स हैं बेटा, जर्मन्स वर देयर, वेंडल्स वर देयर, गॉट्स वर देयर, फ्रैंक्स वर देयर, ठीक है। इन्होंने बार बार अटैक किया और रोमन एम्पायर को वेस्ट साइड में बिल्कुल खत्म कर दिया। The Eastern Roman Empire, which was founded before CE 500, continued for 1,000 more years. क्यों बेटा? What was the reason? Because the kings were very strong. They withheld the attacks of barbaric tribes. उन्होंने जो barbaric tribes थे, जर्मन से, गॉड से, वेंडल से, इनके अटैक को withstand किया और इनको हराया और वहां से भगा दिया. That's why Eastern Roman Empire, which was founded before CE 500, continued for 1,000 years more. वेस्टर्न यूरोप वॉज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम. अभी बात करेंगे वेस्टर्न यूरोप की, ठीक है. बिकॉज ऑफ द अटैक्स ऑफ रिपीटेड अटैक्स ऑफ बारबेरिक ट्राइब्स, जो हमारा वेस्टर्न यूरोप है, इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल किंगडम्स. इज इट क्लियर? इट्स जस्ट अ सिनेरियो. हम बात बता रहे हैं कि वो ट्रांजिशन पीरियड कैसे आया, ठीक है, कैसे एशियंट से मेडिवल हिस्ट्री आएगी. वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस ओनली. तो फर्स्ट चेंज आपने देखा है कि इन 500 सीई व्हाट हैपन, जो रोमन एम्पायर वहां पर था बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है, पॉलिटिकल चेंज आ चुका है, बारबेरिक ट्राइब्स, जर्मन, फ्रैंक्स, वेंडल्स राज कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर यूरोप में रूल कर रहे हैं, ठीक है. एंड because of them only full Europe is divided into number of small kingdoms. During this period only a very important movement has been started, that is the Renaissance. Look over here. ठीक है. तो रेनाइसा के दौरान क्या हुआ बेटा, दी मोस्ट लर्नड पीपल बिलोंग्स टू ग्रीक एंड रोम एट दैट टाइम, ठीक है. जो सबसे लर्नड पीपल थे, बहुत ही क्यूरियस थे, जिन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की हैं, डिस्कवरीज की हैं, वो पीपल ग्रीस और रोम से बिलोंग करते थे. व्हाट दे हैव डिसाइडेड, they have decided to revive the things. वैसे रेनाइसा एक जो फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब क्या है, रीबर्थ और रिवाइवल, ठीक है. तो हमारे ग्रीस और रोम के जो पीपल है, उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने जो एशियंट उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, उनको फिर से स्टडी करना स्टार्ट किया और एक नया व्यू पॉइंट लेके आए, ठीक है. और जो पुराने कस्टम थे, कल्चर थे, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया और एक नया इंटरप्रिटेशन दी, एक नया व्यू पॉइंट दिया. इज इट क्लियर? यस. नाउ वी विल सी द सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम. कैसे सोसाइटी चेंज होगी, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ और कैसे ट्रांजिशन का टाइम आया, ठीक है, और कैसे हमारे एशियंट से मिडीवल का टाइम आएगा. तो बिकॉज ऑफ द बारबेरिक ट्राइब्स, जो बारबेरिक ट्राइब्स थे, जिन्होंने रोमन एम्पायर को बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया था वेस्ट साइड में, उनकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स बिल्कुल खत्म हो गए, व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द लैंड बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी. और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म पहले तो बेटा ट्रेड था, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ देयर अटैक ट्रेड बिल्कुल फिनिश हो गया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी बिकम द लैंड. The political map of Europe altered with the decline of old kingdoms. Old kingdoms खत्म हुई, नई kingdoms आई और नई kingdoms जो है वो बारबेरिक हैं, एक दूसरे से लड़ती रहती हैं. उनकी वजह से बार बार क्या हो रहा है, यूरोप का वेस्ट साइड का जो मैप है बहुत ही ज्यादा बदल जाता है. It altered with decline of old kingdoms and empires and rise of new ones. ठीक है, बार बार चेंज हो रहा है मैप. Now very important thing is over there. The system that developed during this period in society was known as फ्यूडलिज्म. एक नया सिस्टम डेवलप होता है जो बिल्कुल किसके बेस के ऊपर है, लैंड के बेस के ऊपर है, ठीक है. तो एक नया सिस्टम सामने आता है, ठीक है. ओल्ड किंगडम्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और सामने क्या सोसाइटी को कौन डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं. इज इट क्लियर? द इकोनॉमिक लाइफ अंडर दिस सिस्टम वाज रूरल, ठीक है. इज इट क्लियर? तो रूरल फॉर्म है हमारी सोसाइटी की, यानी कि एग्रीकल्चर फॉर्म ऑफ सोसाइटी इज ओवर देयर, जो बिल्कुल लैंड पर डिपेंडेंट है. ट्रेड बिल्कुल खत्म हो चुका है. इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि फ्यूडल सिस्टम क्या होता है और फ्यूडलिज्म क्या होता है. एट दैट टाइम सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे ऊपर कौन है, किंग, देन नोबल्स आर ओवर देयर, प्रिंसेस एंड क्राउन प्रिंस और एरिस्टोक्रेटिक क्लास आप जिसे कह सकते हो, देन नाइट्स आर ओवर देयर, ठीक है. इज इट क्लियर? वो नाइट्स क्या है, ये नाइट्स कौन है बेटा, दे आर द सोल्जर्स, ठीक है. किनकी आर्मी, नोबल्स की आर्मी में, ठीक है. एट लास्ट, बिल्कुल लास्ट में हमारे पीजेंट्स, जिसे हम किसान कह सकते हैं, ठीक है. इज इट क्लियर? किंग के पास लैंड है बट ही डजंट नो द एग्रीकल्चर, तो उसने लैंड किसको दे दिया, नोबिलिटी में डिवाइड कर दिया है.
नोबल्स के पास नाइट्स हैं, इवन नोबल्स डू नॉट नो अबाउट द एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, उन्होंने लैंड किसको दे दिया है, नाइट्स को दे दिया है, ठीक है। नाइट्स जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, ये लड़ना जानते हैं, ये डू नॉट नो द एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, सो दे हैव गिवन द लैंड टू द पीजेंट, किसान को लैंड दे दिया है, ठीक है। बट पीजेंट्स आर वर्किंग ऑन द लैंड ऑफ नाइट्स एज द सर्वेंट्स, स्लेव्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, और इनसे फूड और लेबर इनको बैक देना पड़ता है नाइट्स को, ठीक है। इज इट क्लियर? इनसे लेबर तो फ्री में ले ही रहे हैं, ठीक है, बट जो ये फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी इनसे छीन लिया जाता है, ठीक है। सबसे बुरी हालत पीजेंट की है, इसके ऊपर सारी एट्रोसिटीज, जुल्म हो रहे हैं, सारे टैक्स इसके ऊपर लगाए गए हैं, ठीक है। थ्री क्लासेज, ये जो 3 क्लासेज हैं इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, ये प्रिविलेज्ड क्लास हैं, ठीक है। अब नाइट्स को लैंड दिया था नोबल्स ने, ठीक है, तो ये इन रिटर्न में क्या दे रहे हैं, प्रोटेक्शन एंड मिलिट्री टू दी नोबल्स, नोबल्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और मिलिट्री सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब नोबल्स को किसने लैंड दिया था, किंग ने लैंड दिया था, ये इन रिटर्न क्या दे रहे हैं, मनी, किससे, फूड को बेचकर, ठीक है, एंड नाइट्स जो इनके कंट्रोल में है, ठीक है। व्हेनेवर वॉर इज ओवर देयर, बैटल इज ओवर देयर, ठीक है, किंग के साथ किसी और किंग की वॉर बैटल होती है तो जो नाइट्स कौन प्रोवाइड करते हैं, नोबल्स किंग को प्रोवाइड करते हैं। तो दिस वाज दी अवर फ्यूडल सिस्टम। तो मेन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इज लैंड ओनली, ठीक है, इज इट क्लियर। और पीजेंट का सबसे बुरा हाल है, ठीक है, इसके ऊपर सारे जुल्म एट्रोसिटीज हो रही हैं, सारे टैक्स इसके ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है, और इसका फूड इससे छीनकर ऊपर दे दिया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। The exploitation of the peasantry was the main feature of the social and economic system everywhere in the world. पूरी दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है ड्यूरिंग द medieval पीरियड, ठीक है, और जो पीजेंट्स की बुरी हालत हो चुकी है वो सारे जगह कॉमन है। Is it clear? Everywhere peasantry is being exploited. In Western Europe, peasants were having the status of slaves. जो Western Europe है उसमें बिल्कुल slave की तरह peasant को यूज किया जाता है। The same system was being continued over here in India also as a जमींदारी system. लेकिन यहाँ पर जो peasants हैं, जो किसान हैं, उनकी हालत slaves की तरह नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये थे changes, क्लियर, जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉलिटिक्स में चेंज आया, ठीक है, और एशियंट पीरियड से मेडिवल पीरियड की तरफ यूरोप चला। यस, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ओवर देयर, रोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैलेस्टाइन। नाउ द सीज ऑफ जेरूशलम इन 63 BCE occurred during Pompey the Great। ये पोम्पी द ग्रेट कौन है? ये एक रोमन एम्परर है, ठीक है। इज इट क्लियर? इसे ग्रेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपनी जिंदगी में इसने जितनी भी बैटल्स और वॉर्स लड़ी हैं ये कभी भी नहीं हारा। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द पोम्पी द ग्रेट। इज इट क्लियर? इसने ईस्ट साइड में जितनी भी कैंपेन्स की ये सारी जीता, ठीक है। इज इट क्लियर? और इसने लास्ट में क्या किया, जेरूशलम को 63 BC में जीत लिया। His conquest of Jerusalem, Palestine, spelled the end of Jewish independence। ठीक है, जो जूइश लोग थे, यहूदी लोग थे, उनको गुलाम बना लिया गया। इज इट क्लियर? एंड जूडिया, जहां पर यहूदी लोग रह रहे थे, द पार्ट ऑफ जेरूशलम, ठीक है, और पैलेस्टीन का पार्ट है, ठीक है, वो रोमन एम्परर का पार्ट बन गया। द सीज कंटिन्यूड फॉर 3 months। ये जो सीज था ये 3 महीने तक चला बेटा, ठीक है, and it resulted in death of 12,000 Jewish people while only dozen Roman troops were killed। With this you can see in the pictures also, Romans conquered Palestine in 63 BCE, ठीक है। एरिया renamed as Palestine, ठीक है, जो जूडिया एरिया था उसे पैलेस्टाइन का नेम दे दिया गया, ठीक है। एंड किंग हेरोड पुट इन पावर इन 40 BCE, और किंग हेरोड को वहां का पावर दे दिया गया। हेरोड जूइश है, ठीक है, इज इट क्लियर? लेकिन ये रोमन्स के नीचे वेसल्स की तरह काम करता है, उनके हाथ में कठपुतली की तरह काम करता है। दिस इज किंग हेरोड, ठीक है, इज इट क्लियर? और जूइश लोगों पर बहुत सारा ये अत्याचार करता है। नाउ हु आर दिस जूइश पीपल? अ स्मॉल स्टोरी इज ओवर देयर, let us listen to that one and then we will stop over here। yes, so one prophet is over there like our Jesus Christ, like our prophet Muhammad, one more prophet is over there, ठीक है, उसका नाम इब्राहिम था। वो जीसस से पहले हुए हैं और प्रॉफिट मोहम्मद से भी पहले हुए हैं, ठीक है। टोटल 16 प्रॉफिट्स आर ओवर देयर, ठीक है, इनमें से एक इब्राहिम थे, ठीक है। इब्राहिम को भगवान एक बार कहते हैं और प्रॉमिस करते हैं दैट लीड हिज पीपल, उसके जो डिसिपल्स थे इब्राहिम के, लीड देम टू अ प्लेस, एक प्लेस है जिसका नाम कैनान है, और प्रेजेंट डे इजराइल के पास है ये स्टेट, ठीक है, और जूडा आप इसे कह सकते हो, इजराइल के पास है, और पैलेस्टीन के पास ये स्टेट है, ठीक है। So God promised him to lead his people to a place named Canaan, and one day this place will
टर्न इनटू अ ग्रेट नेशन, और ये प्लेस बहुत ही ग्रेट नेशन में टर्न होगा, वहां पर अपने लोगों को लेकर चले जाए। इब्राहिम अपने डिसेंडेंट्स को वहां लेकर चले जाते हैं। इब्राहिम के डिसेंडेंट्स को हेब्रू पीपल कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही बाइबल लिखी थी, इसे हेब्रू बाइबल कहा जाता है। ठीक है, तो हेब्रू पीपल वहां पर रहे कैनन में फॉर मोर देन 1000 ईयर्स, वहां पर रहते हैं। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम वहां पर अकाल पड़ जाता है, यू कैन से सूखा पड़ जाता है, और खाने पीने की बहुत कमी आ जाती है। देन दीज पीपल ट्रेवल टू इजिप्ट, ये लोग इजिप्ट में आ जाते हैं, और बहुत सारे हेब्रू पीपल इजिप्ट में आ जाते हैं। इजिप्ट का राजा है, उसे फेरो कहा जाता है राजा को वहां पर। ठीक है, वो इन लोगों को गुलाम बना लेता है, हेब्रू पीपल को। ठीक है, इज इट क्लियर? देन व्हाट हैपन, उसी बीच में हमारे इब्राहिम जी की डेथ हो जाती है, और नेक्स्ट जो प्रॉफिट आएंगे उनका नाम मोसेस है। ठीक है, नो मोसेस जो हैं उन्हें भगवान आके कहते हैं कि हेब्रू पीपल को इजिप्ट से बाहर लेके जाएं और वापस इन्हें कैनान में ले जाएं। ठीक है, बट जो फेरो है वो रिफ्यूज करता है, वो अपने गुलामों को नहीं छोड़ेगा। देन व्हाट हैपन, अ सीरीज ऑफ प्लेग स्प्रेड ऑल ओवर इजिप्ट, पूरे इजिप्ट में एक बीमारी फैल जाती है, एपिडेमिक फैल जाता है। ठीक है, जब 10th टाइम वो एपिडेमिक फैलता है तो फेरो को लगता है कि मैं हेब्रू पीपल को गुलाम बना के रखा हुआ, इन पर जुल्म करता हूँ, और मोसेस ने मुझे कहा भी था कि इनको छोड़ दे, तो उसे फील होता है कि मुझे हेब्रू पीपल को छोड़ देना चाहिए। मोसेस हेब्रू पीपल को अपने साथ लेकर एक जर्नी स्टार्ट करते हैं जिसे एक्सोडस कहा जाता है। The Hebrew people wandered through the deserts of Middle East for years. बहुत सालों तक ये हेब्रू पीपल पूरे जो मिडल ईस्ट के डेजर्ट हैं वहां पर घूमते हैं, एंड फाइनली वे कनान में वापस आ जाते हैं। इज इट क्लियर? कैनान में वापस आने के बाद वो वहां के लोग जो कैनानाइट्स हैं उनसे वो लड़ते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? और उनको हरा कर वहां पर रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, और खुद को इजराइलिट्स कहना स्टार्ट करते हैं। इजराइल के पीपल इजराइलिट्स कहना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारा पावरफुल हो जाते हैं, वेल्दी हो जाते हैं। ठीक है, और एक भगवान का मंदिर भी वहां पर बनाते हैं। आफ्टर डेथ ऑफ किंग, किंग की डेथ होती है, सभी लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि नेक्स्ट किंग कौन बनेगा। इसी कन्फ्लिक्ट की वजह से इजराइल लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। ठीक है, एक इजराइल में रह जाते हैं और दूसरे हिस्से को वो जूडा कहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो जूडा आप यहाँ पर देख सकते हो, ओवर हियर दिस जूडिया ओवर हियर। ठीक है बेटा, नाउ द पीपल हु आर लिविंग इन जूडा दे केम टू बी नोन एज जूइश, उन्होंने अपने आप को जूइश पीपल कहना स्टार्ट कर दिया। इज इट क्लियर? ओवर द टाइम बोथ किंगडम्स फेल टू इन्वेडर्स, ये दोनों किंगडम्स इन्वेडर्स के फेल हो जाते हैं, मतलब कि इनके ऊपर इन्वेडर्स अटैक करते हैं, इनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और इनका जो भगवान का मंदिर उन्होंने बना रखा है उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। Jewish people were forced from their land, Jewish people को अपने लैंड से बाहर निकाल दिया जाता है, and the scattering of Jewish outside the Israel and Judah was known as diaspora। ठीक है, इनकी स्कैटरिंग को, वहां से भगाने को, इनको डायस्पोरा कहा जाता है। Some Jewish people after some time return to Jerusalem, फिर से जेरूशलम आते हैं, अपने सुलेमान टेम्पल जो है, जो भगवान का मंदिर उन्होंने बना रखा है, उसे दोबारा बनाते हैं। बट व्हाट हैपेंड इन 63 BCE, 63 BCE में पोम्पी द ग्रेट इन पर अटैक करते हैं और इन्हें गुलाम बना लेते हैं। सो दीज वर द जूइश पीपल, ये है हमारे जूइश पीपल। ठीक है, इज इट क्लियर? एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द जीसस क्राइस्ट, हम जीसस क्राइस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। वो भी जूइश हैं, उनके माँ बाप दोनों ही जूइश हैं। ओके, सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद the Jesus Christ, and today your homework is you have to read page number 1 and page number 2.